friends, today we are going to discuss about the structure of human heart. पिछली क्लास में हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस के बारे में जानकारी ली थी. आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. डायग्रामेटिकली वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. क्लियर. हमें पता है ह्यूमन हार्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग द different parts of the heart. Clear. Here it is this is the superior vena cava. Here it is the inferior vena cava. Clear. So this is superior vena cava. It means the largest vein of the body, and it is inferior vena cava. Clear. Here is this is the aorta. This part is called as aorta. This is pulmonary artery. Here one more pulmonary artery is there. So this is also the pulmonary artery. Here the pulmonary veins are there. So this is the pulmonary vein. It is pulmonary vein. Here also the pulmonary vein is present. This is pulmonary vein. Clear? Here it is the chamber of heart. Clear? This is auricle. This is ventricle. Again this is the second ventricle, and this is the auricle. Here this is the pulmonary artery, and here is this is the part of the aorta. Clear? So these are the important parts of the human heart. The outermost layer is called as pericardium. The outermost membrane which surrounds the heart is called as pericardium. This is right auricle. This is the right ventricle. It is right ventricle. Here the left auricle, and it is the left ventricle. One more thing, the valves. Clear? So here the valve is present. This is the one valve, and this valve is present between right auricle and right ventricle. This valve is tricuspid valve. So it is tricuspid valve, and the valve which is present between left auricle and left ventricle, this is the valve which is present between the left auricle and left ventricle. This valve is present, this valve is called as bicuspid valve. Here the pulmonary artery, and here is a valve present in the aorta. Again a valve is there, and this is called as semilunar valve. This is semilunar
lunar valve. Here at the junction of both of the atrium, SA node is present. So this is SA node, and here one more node is there, that is called as AV node. Clear? इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास ह्यूमन हार्ट का होता है. हमने पिछले लेक्चर में इन सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से पार्ट्स हैं ना. यहाँ पे हम एक बार फिर से देखते हैं. हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. So these are the 4 chambers. Upper 2 chambers are right and left auricle, right and left ventricle. The wall of ventricles are thicker than the wall of auricles, and the size of ventricle is also larger than the auricles. Why is it so? Because the ventricles are the chambers which have to pump the blood. ठीक है, वेंट्रिकल्स को फोर्सफुली ब्लड पंप करना होता है, इसलिए इनकी वॉल भी थिक होती है और इनका साइज भी बड़ा होता है. ऑल ऑफ दीज चैम्बर्स आर डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ सेप्टम. दिस इज द पल्मोनरी, दिस इज द एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी. दिस इज द वेना कावा, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी. क्लियर? दिस इज द ट्राइकस्पिड valve present between right auricle and right ventricle. The bicuspid valve present between left auricle and left ventricle. So this is the structure of human heart. Now come to the working mechanism of human heart. How the working mechanism of human heart is going to takes place. ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरह से ह्यूमन हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो ब्लड वहां से लंग्स में जाता है, फिर वापस ऑक्सीजनेट होकर हार्ट में आता है, देन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, इस तरह से डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, उसे हम देखते हैं. फर्स्टली द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. बोथ ऑफ दीज वेना कावा ब्रिंग्स deoxygenated blood from the different parts of the body. As the name indicates, superior vena cava brings blood from the upper part of the body, and inferior vena cava brings the blood from lower part of the body. The blood is deoxygenated. So here the deoxygenated blood is this. ठीक है, ब्लू कलर के एरो से जो मैं दिखा रही हूँ, दिस इज द deoxygenated blood. It means it is the carbon dioxide rich blood. Here from the lower part of the body, deoxygenated blood comes to the right auricle. ठीक है, राइट ऑरिकल में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. कहां से? वेना कावा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है. ठीक है, ये वॉल्व जैसे ही खुलेंगे, ठीक है, तो ब्लड कहां पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. फंक्शन ऑफ वॉल्व इज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, क्योंकि जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेंगे पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पंपिंग, ठीक है, यदि पंपिंग के टाइम पर ब्लड इस ऑरिकल में वापस एंटर ना हो, बैक फ्लो ब्लड का ना हो, इसके लिए ये वॉल्व क्या होते हैं? वापस बंद हो जाते हैं. तो वॉल्व यहां पर बंद हो जाते हैं. ब्लड यहां से हमारे पास जाएगा किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है, दोनों पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, और यहां से हमारे पास क्या है? दोनों लंग्स, बिकॉज द हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन बोथ द लंग्स. तो दोनों लंग्स में हमारे पास ब्लड चला गया. कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ इन द लंग्स ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, क्योंकि लंग्स के अंदर ही ऑक्सीजन आती है. एल्वियोलाइज में ना, एट द साइट ऑफ एल्वियोलाइज द गैसियस एक्सचेंज इज गोइंग टू टेक्स प्लेस. जैसे ही गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन गेट मिक्स्ड इन द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट गोज इनटू द एल्वियोलाइज. ठीक है, वहां पे गैसियस एक्सचेंज हमारे पास हो जाएगा, और हमारा जो ब्लड है इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड. नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? हमारे हार्ट में वापस आएगा लंग्स से. तो यहां पर हमारे लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है पल्मोनरी वेन्स. सो दीज आर द पल्मोनरी वेन्स. ठीक है,
ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन से, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, अगेन द वॉल्व आर देयर एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यहां से फिर ये ब्लड पंप किया जाएगा एओर्टा में और एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड चला जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हार्ट में ब्लड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। दैट्स व्हाई द सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन एंड आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 halves, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। ईच हाफ इज कंपोज्ड ऑफ 1 auricle एंड 1 ventricle। ठीक है, और दोनों हाफ में डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहते हैं। ठीक है, एक और चीज हमें ध्यान रखना है, जिस टाइम पर हमारा राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो रहा है, सेम टाइम हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल होता है। ठीक है, सेम टाइम पर क्या होगा, यहां पर आ रहा है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में, उसी टाइम पर लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से। यहां पे जो एसए नोड प्रेजेंट है, दिस एसए नोड जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट ना। इसको आप सीनियर क्लास में जाके और डिटेल पढ़ेंगे, यहां मैं सिर्फ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूं। यहां पर एसए नोड जो है इट जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल। जब ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा तो उस टाइम पर दोनों ऑरिकल्स एक साथ स्क्वीज होंगे, दोनों ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड जैसे ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और उस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की वजह से दोनों वॉल्व जो है वो खुल जाते हैं। जैसे ही वॉल्व खुलेंगे ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द valve gets closed to prevent the backflow of blood. Now the ventricles are going to pump the blood. ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करेंगे, राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी में, यहां पर भी वॉल्व प्रेजेंट है, ये वॉल्व भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेंगे क्योंकि ब्लड का प्रेशर उस टाइम बहुत तेज होता है, तो ब्लड वापस से फ्लो ना करे इसके लिए हमारे पास वॉल्व होते हैं। और यहां पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड इनटू एओर्टा एंड फ्रॉम एओर्टा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर, तो इस टाइप से हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करता है। क्लियर, इसे हम एक सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे, किस तरह से ब्लड हार्ट के अंदर आता है, कैसे फिर से लंग्स में जाता है और देन कैसे फिर वापस हार्ट में आकर बॉडी टिश्यूज में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम डबल सर्कुलेशन पे आएंगे। सो फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम पहले इसको देखते हैं, कहां कहां से किस तरह से ब्लड आ रहा है। एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप फ्लो चार्ट को यदि लिखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन उससे आता है, तो आप उसको फ्लो चार्ट को वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग द फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो सुपीरियर एंड inferior vena cava brings deoxygenated blood clear to the right atrium। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रियम में सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। फ्रॉम राइट एट्रियम दिस ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल। सो फ्रॉम राइट एट्रियम ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल through tricuspid valve। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से ब्लड कहां चला जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट गोज टू द पल्मोनरी
through pulmonary artery, it goes to the lungs. So from right ventricle, blood goes to lungs through pulmonary artery. क्लियर? तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में लेकर जाएगी. ठीक है, अब लंग्स में क्या होगा? इन लंग्स ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस. क्लियर? हमारे लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा. After oxygenation, the blood gets oxygenated. Now the oxygenated blood comes into left atrium through pulmonary vein. So the oxygenated blood comes into left atrium through pulmonary vein. Through pulmonary vein. From left atrium, it goes to left ventricle. So from left atrium to left ventricle through bicuspid valve, and from left ventricle it goes to aorta. From left ventricle, next, from left ventricle blood goes to aorta, and from aorta to different parts of the body, or from aorta to different tissues of the body. So here from aorta to different parts of the body. This is the path of blood. Firstly, deoxygenated blood comes. After that, it goes to the lungs for the oxygenation, and again the oxygenated blood comes into the heart, and after that this oxygenated blood will pump into the complete body parts. So this is the working mechanism of human heart. In our heart, the blood comes twice during each circulation. That's why our circulatory system is called as double circulatory system. ठीक है, डबल सर्कुलेशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हमारा वर्किंग मैकेनिज्म ह्यूमन हार्ट का कंप्लीट हुआ. डायग्राम आपने देखा, स्ट्रक्चर आपने देखा, और वर्किंग मैकेनिज्म. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डबल सर्कुलेशन. थैंक यू वेरी मच.